Welcome to online classes of Shivaji Group of Institution. Myself Jyoti Mishra, and this is the geography related video, the chapter Structure of the Atmosphere. In my previous video, I had told you about the composition and the meaning of atmosphere and the atmospheric pressure also. In composition of atmosphere may be divided in heterosphere and homosphere. Heterosphere further divided in thermosphere and ionosphere. And I had already explained you the major gases and their importance to life, like nitrogen, oxygen, carbon dioxide and argon. And now today's topic is structure of the atmosphere. On the basis of the structure, the atmosphere consists of 4 layers. There are 4 layers consist in an atmosphere. The first is troposphere, the second is stratosphere, third is ionosphere, and the last one is exosphere. These 4 are the layers of atmosphere. And now we will start from troposphere. The troposphere literally means the region of mixing. Average height of the troposphere is fixed at 14 kilometers above the sea level, 8 kilometers at the poles and 18 kilometers at the equator, like that. अगर हम ट्रोपोस्फियर की हाइट की बात करते हैं तो पोल से जो उसकी हाइट है, फिर उसके बाद इक्वेटर से जो उसकी हाइट है, और सी लेवल, हमारा जो सी लेवल है उससे, जैसे कहीं पर भी हमारा सी है तो सी लेवल से जो हाइट है उस हाइट को हम क्लियर करते हैं. तो फ्रॉम सी लेवल इट्स 14 किलोमीटर्स, 8 kilometers at the poles and 18 kilometers at the equator. This layer contains water vapor, a colorless, odorless, gaseous form of water which mixes perfectly with other gases. Troposphere contains particle of dust also. Troposphere, there is decrease of temperature with increasing altitude. There is an abrupt change in the lapse rate at the altitude of about 14 kilometers. This level of change is tropopause. Important है tropopause, which marks the upper boundary of troposphere. The elevation or height of tropopause is least at the poles and maximum at the equator. So now stratosphere. ये लोअर मोस्ट लिमिट ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर है. ट्रोपोपॉज इट एक्सटेंड फ्रॉम 18 टू 80 किलोमीटर्स. ये 18 से 80 किलोमीटर्स तक एक्सटेंड है. यहाँ पर 50 डिग्री एंड 60 डिग्री लैटिट्यूड है. इस लेयर में टेम्परेचर डजंट चेंज विद एल्टीट्यूड. इसमें एल्टीट्यूड से जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होता है. नो विजिबल वेदर फेनोमेना टेक प्लेस इन दिस लेयर एंड इट कंटेन्स द ओजोन लेयर. There is a maximum concentration of ozone between 20 to 30 kilometers. This region is thus called ozonosphere. और ओजोन को हम लोग briefly पढ़ेंगे आगे. Then next is the ionosphere. It extends from 80 kilometers to about 480 kilometers. Ionization refers to the process by which atoms are charged. यहाँ पर atoms charge हो जाते हैं into ions through the removal or addition of the electrons, giving them an electrical charge. The temperature decreases with increase in elevation until a low point of 100 degree centigrade. यहाँ पर जाते जाते टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है और इंक्रीज होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है. नाइट्रोजन इन द एक्सट्रीमली रेडिफाइड एयर ऑफ द ionosphere. Ionosphere reflects low frequency radio waves but absorbs medium and high frequency waves. This layer is especially important in long distance radio communication के लिए बहुत important है. And the last one is the exosphere. The layer from the outermost boundary of the atmosphere, जो last atmosphere की जो हमारी layer है वो है exosphere.
The atmosphere in this region is highly prominent with rarefied हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस से भरी हुई है. 480 kilometers the atmosphere is rarefied and it is called the exosphere. In addition to its distinctive layered composition, the atmosphere has a thermal region called thermosphere and within it there is the functional layer called ionosphere. And now ozone in stratosphere. हम लोगों ने भी पढ़ा कि स्ट्रेटोस्फीयर को हम लोग ओजोनोस्फीयर भी बोलते हैं. इसलिए बोलते हैं और क्यों बोलते हैं? फॉर्मेशन ऑफ ओजोन. ओजोन इज मेड अप ऑफ 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. ओजोन 3 एटम से बनी हुई है, while ordinary oxygen is made up of only 2. It takes place in the upper stratosphere. ये स्ट्रेटोस्फीयर के अपर में रहती है. When an oxygen molecule is broken into 2 atoms, जब कोई भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स 2 एटम्स में ब्रोक होता है by the ultraviolet radiation and the free unstable atoms combine with 2 other oxygen molecules forming triatomic ozone gas. And what is the importance of ozone layer? It absorbs the burning ultraviolet radiation from the sun. जो भी harmful ultraviolet radiation सन से इन अर्थ पर पहुंचता है, उसकी जो हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं उनको ओजोन लेयर अपने में एब्जॉर्ब कर लेती है और हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेजेस को नीचे आने नहीं देती. अगर ये एब्सेंस हो, इन एब्सेंस ऑफ दिस लेयर आवर प्लैनेट वुड हैव बीन अनफिट फॉर ह्यूमन हैबिटेशन एंड अदर लिविंग बीइंग्स. ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेजेस. Thus, presence of this layer is a boon to human being. इसीलिए हमारी अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है, बिकॉज ओजोन लेयर जो है वो हमें प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट सन रेजेस से. अब देखिए ओजोन डिप्लेशन हो रहा है. डिप्लेशन का मतलब होता है जो ओजोन लेयर है उसमें होल्स हो रहे हैं, वो डिप्लेट हो रही है और इसका बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट पड़ रहा है. इट्स डिप्लेशन में लीड टू डिजास्ट्रस कॉन्सिक्वेंसेस. Excessive radiation of ultraviolet rays of sun would render man and animals. ज़्यादा अगर रेडिएशन नीचे आएगी तो उससे मैन और एनिमल्स ब्लाइंड हो सकते हैं. कॉज क्रॉप्स डैमेज. क्रॉसेस जो हमारी क्रॉप्स हैं वो डैमेज हो जाएंगी और इम्यूनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी. दिस वुड ऑल्सो बर्न मैन्स स्किन. मैन की स्किन्स को भी बर्न करती है और उससे स्किन कैंसर होने का भी डर है. इट डिस्ट्रॉयज मैनी एक्वेटिक. बहुत सारे एक्वेटिक जो एनिमल्स हैं हमारे, जो हमारे पानी में रहते हैं, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ लाइफ, उनको भी डिस्ट्रॉय करेगी. इसका डिप्लेशन कंटिन्यूअस रिलीज ऑफ सिंथेटिक केमिकल प्राइमरीली क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इनटू द एटमॉस्फेयर. और इसका जो डिप्लेशन है वो कंटिन्यूअसली रिलीज करता है एक सिंथेटिक केमिकल को CFCS एटमॉस्फेयर में. दीज आर यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट इन रेफ्रिजरेटर्स, फायर एक्सटिंग्विश फ्लूइड्स, स्प्रे कैन इंसर्टिंग फोम. They slowly release CFC molecules into the stratosphere where intense ultraviolet rays split them, freeing chlorine atoms. अब इंटरनेशनल मेजर इसके लिए बहुत ज़्यादा इंटरनेशनली सोचा गया है कि कैसे हम ओजोन लेयर को सेव करें. तो जून 1990 में रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 53 नेशंस एग्रीड टू बैन मेजर प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ ओजोन डिस्ट्रॉइंग केमिकल्स. वो केमिकल्स जो ओजोन की लेयर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं उनके प्रोडक्शन पर और यूज़ पर बैन लगा दिया गया. ओजोन लेयर को सेव करने के लिए टाइमली एक्शन लिए गए. इलीगल ट्रेड को, जो कि एक मेजर बैरियर है, सब्सटेंशियल डिमांड फॉर दिस हार्मफुल केमिकल स्टिल एग्जिस्ट, उस पर बैन लगाए गए. ईच कंट्री हैज़ टू टेक स्ट्रिक्ट डिसीजन टू द बैन एंड टू क्रिएट वर्ल्ड वाइड अवेयरनेस अगेंस्ट द यूज ऑफ CFCS टू सेव फर्दर depletion of life and saving ozone layer. Last topic is global warming. Global warming is the unusually rapid increase in Earth's over surface temperature. जब ज़्यादा जो हमारी अर्थ का एवरेज सरफेस टेम्परेचर है जब वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब हम उसको ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं. ओवर द पास्ट सेंचुरी प्राइमरली ड्यू टू द ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज. ग्रीन हाउसेस गैसेस के रिलीज होने से, इसके साथ साथ पीपल्स की बर्निंग फॉसिल फ्यूल की वजह से और कटिंग ऑफ ट्रीज की वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती जा रही है. बहुत सारे कॉजेज़ हैं ग्लोबल वार्मिंग के, जिसमें रोटेशन ऑफ सन दैट चेंजेस द इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट है. एंड द नेचुरल कॉजेज़ में हमारा मूविंग क्लोजर टू द अर्थ भी है,
वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है। और अगर हम ह्यूमन इन्फ्लुएंसेस की बात करें तो बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, बाय कटिंग ऑफ ट्रीज, माइनिंग और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होती जा रही है। अब इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं? इसमें हीट वेव्स होती हैं, ड्राउट्स होने के जो है वो चांसेस होते हैं, हैवी रेनफॉल हो सकता है, हैवी स्नोफॉल होता है। अगर ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा होगी तो बर्फ़ पिघलेगी और स्नोफॉल होगा। ओशन एसिडिफिकेशन होगा। जो स्पेसीज हैं एक्सटिंक्शंस ड्यू टू शिफ्टिंग टेम्परेचर, वो टेम्परेचर के शिफ्ट होने की वजह से वो बहुत डिस्टर्ब होंगे। ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है और कोस्टल वाटर भी इंक्रीज हो सकता है। तो बहुत ज़रूरी है ग्लोबल वार्मिंग को रोकना। तो उसके लिए कुछ सीरियस स्टेप्स शुड बी टेकन टू रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग, जैसे कि कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, रिड्यूस इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, control of CFC release in the atmosphere to prevent depletion of ozone layer and reduce release of carbon dioxide. So हमारा ये टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर कंप्लीट हो गया। अपने नेक्स्ट टॉपिक में हम इंसुलेशन पढ़ेंगे। इंसुलेशन में मीनिंग ऑफ इंसुलेशन, कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, जिसमें हम लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, winds and ocean currents के बारे में पढ़ेंगे। That's all for today. Thank you. Have a nice day.